کربلا ایک ایسا عظیم انقلاب جس کی وجہ سے دنیا کی کئی بڑی اور طاقتور حکومتیں تک الٹ گئیں، جیسے کہ ایران اور شام۔ لیکن آخر یہ کربلا کا واقعہ ہوا کیسے اور کس طرح امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے اس انقلاب کا آغاز ہوا؟ بات اس وقت کی ہے جب معاویہ نے امام حسن علیہ السلام کے ساتھ ہونے والے معاہدے کو توڑ کر اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ مقرر کر دیا۔ اپنی موت سے پہلے معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کو خبردار کیا، حسین سے ہوشیار رہنا، اگر یہ تیرے خلاف کھڑا ہوا تو تو نہیں بچے گا۔ یزید یہ بات بہت اچھی طرح جانتا تھا کہ حسین کی بیعت لینا سب سے زیادہ ضروری ہے، اور یزید نے امام حسین علیہ السلام سے اپنی بیعت کا مطالبہ کیا۔ لیکن نواسہ رسول اس ظالم حاکم کے آگے کیسے جھک سکتے تھے؟ امام حسین علیہ السلام نے واضح طور پر فرمایا کہ مجھ جیسا شخص یزید جیسے کی بیعت ہرگز نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام مدینہ منورہ چھوڑ کر مکہ معظمہ تشریف لے گئے۔ جب یہ خبر عراق کے شہر کوفہ پہنچی کہ امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت سے صاف انکار کر دیا ہے، تو کوفہ کے لوگوں میں ایک امید کی کرن جاگی۔ کوفہ پہلے بھی خلیفہ وقت حضرت علی علیہ السلام کا دارالخلافہ رہ چکا تھا، اس لیے وہاں اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے بہت بڑی تعداد میں موجود تھے۔ کوفہ کے بڑے بڑے سرداروں اور عام لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کو خطوط لکھنا شروع کیے۔ 1 2 10 نہیں بلکہ ہزاروں خطوط مکہ پہنچے۔ ان خطوط میں لکھا تھا کہ ہمارا کوئی امام نہیں ہے، آپ ہمارے پاس تشریف لائیے، ہم آپ کی قیادت میں حق کی جنگ لڑیں گے۔ اس لیے امام حسین علیہ السلام نے اپنے سب سے بھروسے مند، بہادر اور عاقل چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کو بلایا۔ امام حسین علیہ السلام نے حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام سے فرمایا کہ میں تمہیں کوفہ بھیج رہا ہوں، وہاں جاؤ، حالات کا جائزہ لو۔ اگر تم دیکھو کہ کوفہ کے سردار اور عام لوگ اپنے خطوط پر قائم ہیں تو مجھے فوراً اطلاع دینا تاکہ میں مکہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہو سکوں۔ لوگوں کو جیسے ہی معلوم ہوا کہ امام حسین علیہ السلام کے سفیر آ گئے ہیں تو پورا کوفہ استقبال کے لیے امڑ آیا۔ مختلف روایات کے مطابق صرف چند ہی دنوں میں 18,000 سے زیادہ لوگوں نے حضرت مسلم علیہ السلام کے ہاتھ پر امام حسین علیہ السلام کی بیعت کر لی، اور انہوں نے امام حسین علیہ السلام کو خط لکھا کہ کوفہ کے حالات بالکل تیار ہیں، آپ تشریف لے آئیں۔ لیکن وہ اس بات سے بے خبر تھے کہ شام میں بیٹھا یزید کوفہ کی اس بغاوت کو دبانے کے لیے ایک بہت ہی ظالم اور مکار شخص کو کوفہ بھیجنے کا فیصلہ کر چکا ہے۔ شام سے ایک حکم نامہ نکلتا ہے اور کوفہ کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ یزید نے بصرہ کے ظالم حاکم عبید اللہ ابن زیاد کو کوفہ کا نیا گورنر مقرر کر کے بھیجا۔ ابن زیاد ایک انتہائی مکار، چالاک اور بے رحم انسان تھا جو اچھی طرح جانتا تھا کہ لوگوں کے دلوں میں خوف اور لالچ کیسے پیدا کیا جاتا ہے۔ وہ کوفہ میں اتنے چپکے سے داخل ہوا کہ عام لوگوں کو کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ اس نے سیاہ رنگ کا نقاب اوڑھا ہوا تھا تاکہ لوگ اسے امام حسین علیہ السلام سمجھ بیٹھے۔ کوفہ کے لوگ اتنے بے چین تھے کہ وہ دوڑے دوڑے آئے اور خوشی سے نعرے لگانے لگے کہ لیکن جب یہ قافلہ دارالعمارہ یعنی گورنر ہاؤس پہنچا تو اس نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا۔ لوگوں کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ نواسہ رسول نہیں بلکہ موت کا دوسرا نام عبید اللہ ابن زیاد تھا۔ ابن زیاد نے کوفہ کی حکومت سنبھالتے ہی اپنا مکارانہ کھیل شروع کر دیا۔ اس نے سب سے پہلے کوفہ کے بڑے بڑے قبائل کے سرداروں کو مخفی طور پر گورنر ہاؤس بلایا۔ اس نے ان سرداروں کے سامنے 2 ہی راستے رکھے، ایک طرف بہت بڑی دولت، جاگیریں اور عہدے تھے، اور دوسری طرف بے رحم موت اور شام کے شاہی لشکر کا خوف۔ اس نے دھمکی دی، یزید کا ایک بہت بڑا لشکر شام سے روانہ ہو چکا ہے، اور جس نے بھی مسلم کا ساتھ دیا اس کی نسلیں مٹا دی جائیں گی۔ یہ سن کر کوفہ کے خود غرض سرداروں کے ایمان ڈگمگا گئے۔
वो दौलत की लालच और जान के डर से इमाम अलैहिस्सलाम के सफीर को तन्हा छोड़ने पर तैयार हो गए। इन सरदारों ने गवर्नर हाउस से निकलकर अपने अपने कबीले के लोगों को डराना शुरू किया। अपने मर्दों को मुस्लिम के लश्कर में शामिल मत होने दो और उनकी हिफाजत करो दा। और हजरत मुस्लिम अलैहि अस्सलाम चारों तरफ से दुश्मनों के घेरे में आ चुके थे। आप शदीद जख्मी हो चुके थे, आपके होंठ कट चुके थे और दांत टूट चुके थे। इस मजलूमियत के हाल में आपको गिरफ्तार करके उबैदुल्लाह इब्न जियाद के सामने दारवालिमारा लाया गया। इब्न जियाद ने बेरहमी की तमाम हदें पार कर दी। उसने हजरत मुस्लिम अलैहिस्सलाम को दारवालिमारा की सबसे ऊंची छत पर ले जाने का हुक्म दिया। आपको जख्मी हाल में छत पर लाया गया, जहां से पूरा कूफा साफ नजर आ रहा था। आपने मक्का मुअज्जमा की तरफ रुख किया, जहां इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मकदस काफिला रास्ते में था, और बड़े दर्द से पुकारा, अस्सलामु अलैका या अब्ना रसूलिल्लाह, ए अल्लाह के रसूल के बेटे, मेरा सलाम कबूल कीजिए। उसी वक्त जल्लाद की तलवार चली और नुज़ी अल हिज्जा 60 हिजरी को करबला की ये पहली अजीम कुर्बानी मुकम्मल हो गई। हजरत मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम का सर अनवर कलम करके नीचे फेंक दिया गया और आपके जसद खाकी को महल की छत से गिरा दिया गया। दूसरी तरफ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इस वक्त तक अपने खानदान के साथ मक्का से कूफा की तरफ रवाना हो चुके थे। वो पिछले कई महीनों से मक्का में ठहरे हुए थे और हज के मौका पर हजारों मुसलमान उनके पास आकर उनका साथ देने का वादा कर रहे थे। जब यजीद को इस बात की खबर हुई तो उसने अपने कुछ कातिलों को हाजियों के रूप में इहराम की हालत में भेजा, ताकि वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद कर दे। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को इस साजिश का इल्म हुआ कि यजीद ने काबा की हुर्मत पामाल करने के लिए अपने जासूस भेजे हैं, तो उन्होंने मक्का की हुर्मत बचाने के लिए हज को उम्रे में बदल दिया और मक्का छोड़ने का तारीखी फैसला किया। मक्का से रवाना होने से पहले आपने एक बहुत अजीम खुतबा दिया और फरमाया, जो हमारा साथ देगा वो शहीद होगा और जो पीछे रह जाएगा वो कभी भी उस अजीम कामयाबी को हासिल नहीं कर सकेगा। ये अल्फाज कहकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने काफिले के साथ कूफा की तरफ निकल पड़े, लेकिन उन्हें इस बात की खबर नहीं थी कि कूफा पर इब्न जियाद मुकम्मल कब्जा कर चुका है और कूफा वाले गद्दारी कर चुके हैं। उनके कई चाहने वालों ने उन्हें वहां जाने से मना भी किया, लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तकरीबन 70 से 80 लोगों के मुख्तसर काफिले के साथ कूफा की तरफ रवाना हो गए। वो किसी जंग के लिए नहीं जा रहे थे, बल्कि अपने खानदान और बच्चों के साथ कूफा के लोगों की दावत पर उनसे मिलने जा रहे थे। ये अजीम और मजलूम काफिला रेगिस्तान के सफर पर गामजन था कि अचानक रास्ते में उन्हें एक बहुत दर्दनाक खबर मिली। ये खबर मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम की शहादत की थी। ये खबर सुनते ही काफिले में गम की लहर दौड़ गई और कुछ साथियों के हौसले टूटने लगे। कुछ लोगों ने पीछे हटने और वापस जाने का इरादा किया, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उन्हें मुखातिब करके फरमाया कि हम अल्लाह की तरफ से आए हैं और हमें उसी की तरफ लौट कर जाना है। हमें हर हाल में यह सफर पूरा करना है और मैं अब वापस नहीं मुड़ सकता। इसके बाद ये काफिला एक बार फिर पूरे अज़्म के साथ कूफा की तरफ बढ़ने लगा। इसी सफर के दौरान जब एक मकाम पर इस काफिले ने कुछ देर के लिए क़याम किया और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सो रहे थे, तो आपने ख्वाब में अपने नाना अल्लाह के रसूल मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की। नाना ने अपने नवासे से फरमाया, ऐ हुसैन आगे बढ़ो, अल्लाह तुम्हें शहीद देखना चाहता है। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ख्वाब से बीदार हुए तो उन्होंने अपने बावफा साथियों से ये ख्वाब बयान किया और ऐलान किया कि अब जो वापस जाना चाहता है वो चला जाए, क्योंकि अब जो मेरे साथ रहेगा वो यकीनन मारा जाएगा। कुछ दुनियादार लोग काफिला छोड़कर चले गए, लेकिन जो सच्चे आशिक थे वो अपने इमाम के साथ डटे रहे और ये काफिला फिर से अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गया। सफर मजीद आगे बढ़ा तो रास्ते में इन्हें एक और काफिला दिखाई दिया। ये जुहैर बिन कैन राजी अल्लाह अन्हु का काफिला था। जुहैर की मुलाकात इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से हुई।
इस इंतहाई मुख्तसर लेकिन रूहानी मुलाकात के बाद जुहैर बिन कैन की दुनिया ही बदल गई। उन्होंने फौरन अपनी बीवी को तलाक दे दी और उससे कहा कि तुम बाकी सब लोगों के साथ महफूज जगह पर चली जाओ, क्योंकि मैं अब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ अपनी जान कुर्बान करूंगा। ये इश्क की वो मंजिल थी जहां दुनिया के रिश्ते बहुत छोटे हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ यजीद को ये मुकम्मल खबर मिल चुकी थी कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कूफा की तरफ रवाना हो चुके हैं। तो उस नापाक हुक्मरान ने हुर बिन यजीद को 1000 के भारी लश्कर के साथ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के काफिले को रास्ते में ही रोकने के लिए भेज दिया। हुर बिन यजीद ने अपने बड़े लश्कर के साथ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के काफिले का रास्ता काट लिया और उन्हें दरियाए फुरात के किनारे एक तपते हुए रेगिस्तान में आगे बढ़ने से रोक दिया। जब काफिले के कदम रुके तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने साथियों से पूछा कि ये कौन सी जगह है। लोगों ने जवाब दिया कि ये करबला है। ये नाम सुनते ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू आ गए और आपने फरमाया कि यही वो जगह है जहां हमारा खून बहाया जाएगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि यहीं खैमे गाड़ दो, अब हम आगे नहीं बढ़ेंगे। ये बिल्कुल वही जगह थी जहां से जब इमाम अली अलैहिस्सलाम जंग सिफ़ीन से लौट रहे थे तो आपने यहीं रुककर फरमाया था कि ए हुसैन, उस दिन सब्र करना जिस दिन तुम्हारा बाप तुम्हारी मदद के लिए तुम्हारे पास नहीं होगा। तुम करबला की जमीन पर सब्र करना, क्योंकि वहां तुम्हें अकेले मौत का सामना करना पड़ेगा। जब 2 मुहर्रम के दिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जानिसार साथियों ने करबला में खैमे लगा लिए तो उसी वक्त यजीद ने 4000 के मजीद लश्कर के साथ उमर बिन साद को हुर बिन यजीद की फौज के साथ मिलने के लिए भेज दिया। इससे दुश्मन की फौज और ज्यादा बढ़ गई। इसके अलावा भी उमर बिन साद यजीद से लगातार और ज्यादा लश्कर मंगवाता रहा, जिसके बाद उस जालिम की फौज तकरीबन 30,000 तक पहुंच गई। वहीं दूसरी तरफ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ उनके सिर्फ 72 साथी थे, लेकिन आखिर केवल उमर बिन साद इतनी ज्यादा फौज मंगवा रहा था जबकि सामने सिर्फ 72 लोग थे और उनमें से भी कई मासूम बच्चे और औरतें थीं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि इन 72 लोगों में एक ऐसा इंसान मौजूद था जिसका नाम अब्बास था। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम इमाम अली अलैहिस्सलाम के बेटे और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के भाई थे। वो इतने बहादुर और शुजा थे कि जब वो जंग में लड़ते थे तो लोगों को यही लगता था कि जैसे खुद अली लड़ रहे हों। उन्हें इमाम अली अलैहिस्सलाम ने तहज्जुद की नमाज में अल्लाह से मांगा था। आपने दुआ की थी कि ऐ अल्लाह, मुझे ऐसा बेटा अता फरमा जो मेरे बेटे हुसैन को उसकी तन्हाई के दिन सहारा दे। मुझे ऐसा बच्चा अता कर जो हुसैन का वफादार हो, जो करबला के मैदान में उसके साथ खड़ा हो, जो उसके लिए अपनी जान दे और मौत के सामने कभी न झुके। तब जाकर अल्लाह ने उन्हें अब्बास जैसा बेटा दिया था। इसी वजह से उमर बिन साद मुसलसल फौज मंगवा रहा था, क्योंकि उसके सामने हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम चट्टान बनकर खड़े थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कूफा के लोगों को एक खत लिखा ताकि उन्हें अपनी इस मजलूम हालत के बारे में बताएं, लेकिन वो खत कभी कूफा के दहूकेबाज लोगों तक पहुंच ही नहीं सका। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथी शदीद प्यास बर्दाश्त कर रहे थे कि उनके 7 मुहर्रम को उमर बिन साद ने 500 फौजी दरियाए फुरात के किनारे खड़े कर दिए थे ताकि अहले बैत अलैहिस्सलाम तक पानी का एक कतरा भी न पहुंच सके। इस वक्त रेगिस्तान में शदीद तरीन गर्मी थी। तपता हुआ सूरज सर पर था। मासूम बच्चे प्यास से बिलक रहे थे और उनके होंठ सूख कर कांटा हो चुके थे। यहीं तक कि औरतें प्यास की शिद्दत से बेहोश हो रही थीं। प्यास की वजह से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथी जिस्मानी तौर पर कमजोर हो रहे थे, लेकिन उनका जज्बा इतना ही मजबूत था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के एक बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम पहले ही शदीद बीमार थे। बीबी सकीना अलैहिस्सलाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास आकर बार बार पूछ रही थी कि बाबा पानी कहाँ है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दुश्मनों को पैगाम भेजा, तुम्हें मुझसे दुश्मनी है?
تو ان معصوم بچوں اور عورت پانی پینے دو، آخر ان کا کیا قصور ہے؟ لیکن ان کا آگے سے بے رحم جواب آیا کہ ہمیں عبید اللہ ابن زیاد نے سخت حکم دیا ہے کہ انہیں پانی کا ایک قطرہ تک نہیں دینا۔ اگلے دن 8 محرم کو امام حسین علیہ السلام نے عمر بن سعد سے بات چیت کرنے کی کوشش کی، لیکن ان ظالموں کی صرف ایک ہی مانگ تھی کہ یزید کی بیعت کر لو، جو کہ امام حسین علیہ السلام کسی بھی قیمت پر کرنے کو تیار نہیں تھے۔ پیاس کی شدت اتنی بڑھ چکی تھی کہ دل کی دھڑکن تیزی سے بڑھ رہی تھی، خون گاڑھا ہونے کی وجہ سے جسم کو پمپ کرنے میں شدید مشکل ہو رہی تھی، دماغی صلاحیتیں جواب دے رہی تھیں، اور یہ سب تکلیفیں ان معصوم بچوں میں اور بھی زیادہ بڑھ گئی تھی۔ رونے والوں کی سسکیوں میں درد کی صدا، آہستہ آہستہ سینہ کو بھی کی دھڑکن، کیا فوج کی تعداد بتاتے ہو ہمیں تم، ہم خاک نشیں موت کے سائے سے نہیں ڈرتے۔